और आज हमारे शो हेल्थ टॉक में हमारे साथ है डॉक्टर मनीष बगई, जिनके साथ हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी क्या है, लैब टेस्टिंग क्या होती है, किस तरह की होती है और साथ ही पैथोलॉजी को एज अ प्रोफेशन अपनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर मनीष बगई। एक पैथोलॉजिस्ट का क्या प्रोफाइल होता है सर? Pathologist basically works in a lab. It's a diagnostic lab and the pathologist helps in diagnosing of the disease. कोई भी बीमारी है उसका डायग्नोसिस क्या है उसकी हेल्प करता है पैथोलॉजिस्ट, whether it is from the blood test, a urine test, some cytology, study of cells, study of tissues, study of bone marrow. So the pathologist study all these kind of samples and give a diagnosis and helps the clinician to treat the patient. What is understanding a pathology report? What does it mean and how does it impact the decisions regarding your treatment? पैथोलॉजी रिपोर्ट यूजुअली हमें पेशेंट को और क्लिनिशियन को डायग्नोसिस के बारे में बताता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। सो बेसिकली इट हेल्प्स द ट्रीटिंग फिजिशियन टू ट्रीट द पेशेंट। लाइक देयर इज़ अ पेशेंट जिसको फीवर है, बुखार है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कौन से टाइप का बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई और रीज़न है। सो उसका एक पैथोलॉजी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि उसको बताएं कि हम इसको मलेरिया है या कुछ और है, टाइफाइड है या मे बी समथिंग एल्स। So it is very important to get all these tests done. How is the diagnosis of cancer made? कौन-कौन से टेस्ट इसके अंडर आते हैं? Cancer is a very vast term. The cancer के डायग्नोसिस के लिए हम बहुत तरह के टेस्ट कर सकते हैं. Like most important tests are the FNAC, fine needle aspiration cytology, और biopsy test. एक छोटे सी एग्जांपल देता हूँ. Like in females, cancer of the breast is very common. So जो ये पेशेंट्स होते हैं इनको they usually have a lump in the breast. So when they visit the doctor, the patient is referred to a pathologist. तो pathologist क्या करता है? Pathologist एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं FNAC, Fine Needle Aspiration Cytology. तो उस लम्प में से एक नीडल से सैंपल लेता है and take out the cells from that lump and study it under the microscope. So and gives a diagnosis of tumor, malignancy, cancer, or it is not malignant. So that is a very simple test which helps in diagnosing whether the patient has cancer or not. Another example, the patient coming with bleeding from the rectum. So what the physician do, take a small piece of tissue from the intestine and send it to the pathology lab. So pathologist study that tissue and gives a diagnosis what it is. Malignancy है, cancer है या नहीं है. अगर कैंसर है तो किस टाइप का है, कहाँ तक फैला हुआ है, और अगर नहीं है तो क्या बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स को बताइए कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो हमें रेगुलरली करवाने चाहिए? रूटीन में हमें अपना कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करवाना चाहिए जिसके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स, प्लेटलेट काउंट, TLC एंड डिफरेंशियल काउंट आता है। सो हमें ये बताता है कि हमें अनीमिया है या नहीं है, विच इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। फास्टिंग ब्लड शुगर रूटीन में करवाना चाहिए हमें, जो हमें अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में हेल्प करता है। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ इन इंडिया, सो वी शुड get ourselves screened for diabetes. All females over 35 years of age should get a pap smear done. A pap smear is a test which helps in diagnosing of carcinoma of the cervix. It is a very common disease and उसके लिए हमें क्या करना है, gynecologist एक sample लेते हैं from the cervix and pathologist studies that sample and we give the diagnosis whether the patient has cancer or not. Or other routine tests in all males over 50 years of age, there is a test which is known as PSA. प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि हेल्प करता है हमें डायग्नोस करने के लिए कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। सो उसके लिए आफ्टर 50 years of age, all males should get annual PSA levels test done. And in case the patient has diabetes, he should get routine renal function test. So all these tests helps us in detecting the disease early, right? पर क्या ये टेस्ट बिना डॉक्टर की सलाह के करवाए जा सकते हैं? ये सारे टेस्ट डॉक्टर के सलाह के बिना करवाए जा सकते हैं, बट इन टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है या कुछ भी एबनॉर्मलिटी निकलती है वो एक पैथोलॉजिस्ट या एक फिजिशियन ही देख सकता है। सो अगर इन टेस्ट में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी निकलती है तो वन शुड ऑलवेज कंसल्ट अ फिजिशियन और वन शुड आस्क अ पैथोलॉजिस्ट वेयर टू गो। अच्छा डॉक्टर, जब किसी बीमारी का डिटेक्शन होता है देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जब कोई बीमारी का डिटेक्शन होता है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रीट इट। सो वी शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिजीज इट इज़। अगर ट्यूबरक्लोसिस निकलती है तो वन शुड विजिट अ फिजिशियन हु इज स्पेशलिस्ट इन ट्यूबरक्लोसिस।
अगर कुछ कैंसर निकलता है हमें सर्जन के पास जाना चाहिए या फिर डॉक्टर जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है फॉर द ट्रीटमेंट। सो इट डिपेंड्स कि क्या बीमारी निकलती है, हमें उस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि एक पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? एक पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें पहले MBBS करनी पड़ती है एंड MBBS करने के बाद MD इज़ अ 3 year स्पेशलिस्ट कोर्स इन पैथोलॉजी। सो उसके बाद हमें MD इन पैथोलॉजी करनी पड़ती है। ओके, खुद का एक लैब सेटअप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्टर? डिपेंड करता है हमें किस तरह की लैब सेट करनी है, हमें छोटे लेवल पे सेटअप करना है या बहुत बड़े लेवल पे करना है सेटअप। अगर बहुत छोटे लेवल पे सेटअप करना है इस तरह की लैब में बेसिकली मैनुअल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता है। सो द इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज 2 lakhs and then is a medium sized labs which are the most common labs which we see around. The medium sized labs के अंदर मोस्टली सेमी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमें मोस्टली रिजल्ट्स अपने मिल जाते हैं। इस तरह की लैब सेटअप करने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए होती है। एंड अगर हमें हाई लेवल की लैब सेट करनी है जिसमें ऑल फुली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हों, हर तरह के टेस्ट हों जिसमें एंड अच्छा क्वालिटी कंट्रोल हो, उस तरह की लैब सेटअप करने के लिए हमें बहुत अच्छा सेटअप चाहिए एंड उसकी तकरीबन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 50 lakhs। ठीक है। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट्स के लिए होगी कि वो चूज़ कैसे करें कि कौन से लैब में जाकर उन्हें अपना टेस्ट कराना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो लैब इन्वेस्टिगेशन है इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। हाँ जी। अगर लैब रिजल्ट ठीक नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होगा। सो हमें जब भी लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो उसमें हमें कौन सी लैब में जाना है और कौन सी लैब में नहीं जाना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए लैब में, किसी लैब में जाने से पहले कि उस लैब का सुपरवाइज़र कौन है। उसमें कोई MD पैथोलॉजी या MD बायोकेमिस्ट्री या MD माइक्रोबायोलॉजी कोई डॉक्टर है जो उस लैब को सुपरवाइज कर रहा है। तो अगर डॉक्टर हो जाए तो उस लैब का क्वालिटी कंट्रोल विल बी बेटर। बहुत सारी लैब्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ टेक्नीशियन काम करते हैं एंड देयर इज़ नो सुपरविजन। द अनदर थिंग which we should see is whether the lab has some accreditation or not. You see there are a lot of when you go to buy something there are some quality measures. कभी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं उसमें ISI मार्क है या नहीं है। तो लैब के लिए क्या है ऐसा? तो लैब में देयर इज़ अ NABL, दिस इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेशन ऑफ लैबोरेटरीज, जो कि लैब की इंस्पेक्शंस करता है एंड उसके बाद बताता है कि लैब की जो रिजल्ट्स हैं वेदर दे आर द लैब इज़ क्वालिटी ओरिएंटेड और नॉट। सो अगर लैब NABL एक्रेडिटेड है तो हम भरोसे के साथ बोल सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स ठीक होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम ऐसी लैब्स हैं जो NABL एक्रेडिटेड हैं इन इंडिया। देयर आर अबाउट ओनली 100 लैब्स एंड देयर इज ओनली वन हियर इन आवर सिटी which is our Fortis Mohali lab which is NABL accredited. बट ओवरऑल अगर हमें पिन पॉइंट करना है कि इस लैब में जाएं तो हमें कम से कम उस लैब में जाना चाहिए जहाँ पे कोई डॉक्टर है जो सुपरवाइज कर रहा है उस लैब को, प्रेफरेबली MD पैथोलॉजी जो उस लैब को देख रहा है एंड जो लैब आपको सिर्फ रिजल्ट्स नहीं दे, आपको उस रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन भी समझा सके कि इसका क्या मतलब है और आगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट गेटिंग द रिजल्ट्स एंड देन नॉट नोइंग व्हाट टू डू। सो जो लैब आपको बताए कि अभी ये आपका रिजल्ट है, इसका ये मतलब है एंड अभी आपको क्या करना चाहिए, सो हमें उस लैब में जाना चाहिए। अच्छा सर, हमें ये बताइए व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप दिस प्रोफेशन? पैथोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट हमें सेकंड प्रोफेशनल MBBS में पढ़ाया जाता है। मेरा उसी टाइम से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था एंड MBBS करने के बाद डेस्टिनी और लक आई गॉट अ जॉब एज अ डेमोन्स्ट्रेटर इन पैथोलॉजी। सो एट दैट टाइम आई डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। उस टाइम मुझे पता लगा कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं एंड जितने भी पेशेंट्स हैं दे कम टू द पैथोलॉजी लैब फॉर द रिपोर्ट्स। तब मुझे ऐसा लगा कि इन रिपोर्ट्स के बिना एंड लैब की हेल्प के बिना कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता एंड आई थॉट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड एट दैट टाइम आई थॉट दैट आई शुड जॉइन पैथोलॉजी एंड उसके बाद आई joined post graduation in pathology and I'm very happy and satisfied with this profession. ये तो
हम जानते ही हैं कि एक डॉक्टर होना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है। सर आप हमें बताइए कि आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? बीइंग एमडी पैथोलॉजी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वी डू नॉट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एट नाइट टाइम। हमें बहुत ही कम कॉल्स आती हैं जब रात को हमें जाना पड़ता है कुछ रिपोर्ट देने के लिए। मोस्टली इट इज़ रूटीन ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 6 और 9 to 6:30 7। सो उसके बाद मोर और लेस वी आर फ्री। नाइट में कभी कॉल्स आती हैं तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दोज कॉल्स ऑन द फोन, बट वेरी रेयरली वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल लाइक अ सर्जन और अदर स्पेशलिस्ट दे हैव टू गो टू द emergency and do the procedures. We do not have to do. So that is a very big positive point. So I think that helps a lot. सर आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ एडवाइस? जो स्टूडेंट्स अभी MBBS कर रहे हैं एंड जो पैथोलॉजी करना चाहते हैं, मेरा उनसे यही एडवाइस है कि जब भी वो पैथोलॉजी ज्वाइन करें, डू इट विद लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच एंड इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग बिकॉज वी हेल्प द पेशेंट्स, वी हेल्प द डॉक्टर्स, वी हेल्प द फिजिशियंस to treat the disease, and we are the most important people who work in the hospital. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us and sharing so much knowledge. Thank you for coming. Thank you for inviting me.